Okay, once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. Hope you people are doing well. Okay, and yesterday, we have started with the OSI reference model ka first layer and second layer, and today we are going to complete the remaining four layers. That is uh, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? So remember in this way also. And one more statement you can remember: please do not throw sausage pizza away. Okay, so these are the two things, these are the two statements from which you can easily remember these seven layers. Okay, I hope you remember these seven layers. So coming to our slide first. Okay, and then if required, then we'll go to that Jamboard. Okay, so moving to the next layer. First layer we have gone through. This will take a revision of short 10 seconds. So this is the first layer. It converts the data into bits. Okay, because your transmission media, your cables are not going to understand the language of data information क्या है भाई, उसको नहीं समझता, ठीक है? So what they are going to understand, they will be understanding the bits. Okay, that is the signal. Okay, in the form of 0 1, जो भी form में आपका signal है, so that signal they are going to understand. So we have to convert the responsibility of the physical layer, because it is at the last. Okay, if you will see, तो आपका physical layer last है आपके center side में. If you consider the center side, then it is at the bottom. Okay, so your physical layer की responsibility is to convert the data into bits. Okay, and at the receiver side it is going to convert the bits into again data. So दोनों की तरफ उसका vice versa काम हो जाता है. Some functionalities I have mentioned, like communication. It establishes the communication between the sender and the receiver. Then it defines the data rate. Okay, from how much data rate they are going to communicate. Okay, ऐसा ना हो कि तो मिस बैलेंस हो जाए और डेटा पैकेट लॉस होने लगे. Okay, so we don't want to lose any packet. If any packet gets dropped, then what we have to do, we need to resend that particular packet. And if you will resend the packet, then again there will be a there will be a congestion, there will be a crowd, the packets, number of packet will be more at that particular moment of time. So we don't want to increase that rate also. तो सिंक्रोनाइजेशन भी इसलिए जरूरी है, डेटा रेट का डिफाइन करना भी जरूरी है, देन सिग्नल्स को बिट्स में कन्वर्ट करता है, वाइस वर्सा. सो these four things you can easily mention as a task, as a functions of physical layer. Coming to the, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था. Coming to the data link layer, we had a discussion about that also, that it divides the layer into two sub layer. One is the medium, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं या मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं. सो मीडियम एंड मीडिया इज वन ऑफ द सेम थिंग. ओके, so medium is nothing but the channel from which your data is your signal is traveling. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा केबल है. आई विल शो द केबल. अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारा केबल है. ओके, इसके अलग अलग कलर्स आते हैं, ब्लू कलर का, ग्रे कलर का, येलो कलर का. कॉज ऑफ द जनरेशन द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्विस्टेड पेयर केबल. दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम लोग कैट 5 केबल, कैट 6 केबल, कैट 6 ई केबल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्किंग केबल्स हैं जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल है, जिसके अंदर RJ45 कनेक्टर भी लगा हुआ है. इफ यू पीपल्स कैन सी. ओके, आई डोंट नो वेदर यू पीपल्स आर देख सकते हैं इसको. हाँ, अभी आप लोग देख सकते हैं. तो ये देखो ट्विस्टेड पेयर केबल है आपका, पीले कलर का आप लोग देख सकते हैं, येलो कलर का है. एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड ऑन किया हो ना, तो इसके लिए वो आपको शायद सही से ना दिखे. सो जो भी है, हाँ, तो योर मीडियम एक्सेस कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपके मीडियम को, आपके इस पर्टिकुलर मीडियम को जो मैंने केबल बताया, इसको कंट्रोल करता है. ठीक है, इसके एक्सेस को कंट्रोल करता है कि किसका डेटा इसमें जाना है, किसका नहीं जाना है. सो दैट इज गोइंग टू बी मैनेज, दैट इज गोइंग टू बी इन द कंट्रोल में. एंड आफ्टर दैट वी हैव सेकंड सब लेयर, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसका मेन काम है आपके फिजिकल लेयर जो कि नीचे है, डेटा लिंक लेयर के नीचे जो आपकी फिजिकल लेयर है, दैट फिजिकल लेयर एंड ऑल द अपर लेयर, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, लिंक एस्टैब्लिश करने का काम आपके LLC का है. सो ये दो छोटे छोटे काम है. एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है इसका फ्रेमिंग का. इट कन्वर्ट्स द डेटा, जो भी आपका है डेटा, उसको क्या करेगा, फ्रेमिंग में कन्वर्ट करते हैं. सो ये हम लोगों ने देखा. फ्रेम के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेंटर का हार्डवेयर एड्रेस एंड सेंटर का
मतलब के हार्डवेयर, मतलब सॉरी, सेंडर एंड रिसीवर का हार्डवेयर एड्रेस होता है, यानी कि मैक एड्रेस होता है, यानी कि मशीन एड्रेस होता है, ठीक है। सो उसको हम लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, ठीक है। सो मेन काम तो ये है हमारे डेटा लिंक लेयर का। मैंने आपको कल ही पूरा इसके अंदर बहुत सारा मतलब मार्किंग करके मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग इसको, फॉर एग्जांपल आपका आपका जो डेटा लिंक लेयर है, दिस इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होप टू होप डिलीवरी। So it is responsible for hope to hope. So this is the first hope, this is second hope, सेकेंड होप से फिर आपका पहुंचा थर्ड होप, थर्ड होप से फिर आपका डेस्टिनेशन पहुंचा फोर्थ होप, ठीक है। सो होप टू होप डिलीवरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिलीवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे डेटा लिंक लेयर की है, ठीक है। सो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होप टू होप डिलीवरी, ओके। बिटवीन एवरी टू होप की जो रिस्पॉन्स, आपने ऐसा नहीं कि भाई चलो डेटा लिंक लेयर बोलेगा कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लाके छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक लाके छोड़ दिया तो हो गया काम, तो यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटा लिंक लेयर की, फिर यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटा लिंक लेयर की। सो बिटवीन एवरी टू होप्स देयर इज अ डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है उसको कवर करने की और उसमें आपके पैकेट को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द डेटा लिंक लेयर, ओके। तो ये हम लोग ने किया था कल तक, अब करते हैं हम लोग आज नया लेयर शुरू, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा हम लोग का बेसिक क्लियर हो रहा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर ओएसआई लेयर अगर क्लियर है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल अगर क्लियर है, तो आगे की काफी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। Still, if you have any doubt, then please let me know. Okay, we can have a discussion again on that particular topic. Okay. सो कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज थर्ड लेयर। अब आपको पता है आज फिर से आज फिर से मतलब जो भी आप लोग का, आप लोग ऊपर से आते हैं तो प्लीज डू नॉट, ठीक है। तो एन 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 पे आ गया हमारा नेटवर्क लेयर, ओके। सो दिस इज थर्ड लेयर which is responsible for the network communication. Okay, here we are going to have the IP addresses, okay. We are going to use the IP address over here, you can see later. It has two major functions, as I have mentioned. One is the logical addressing and second is routing or routing, okay. Some of the people call it as a routing, okay, because it comes from the router, okay, or sometimes it is also called as routing, okay. तो बेसिकली रूटिंग मतलब किसी को रास्ता बताने का, ठीक है, ठीक है। आपने बोला मुझे पनवेल बस स्टैंड जाना है, आई एम इन खारगो राइट नाउ, आई एम इन पनवेल, आई एम इन कॉलेज राइट नाउ। सो समवन आस्क मी दैट आई जस्ट वांट टू गो फॉर पनवेल बस स्टैंड, ओके। तो मैं उसको अब रूट बताऊंगा कैसे जाना है, ठीक है। भाई यहाँ से निकल जा कॉलेज से, फिर यहाँ से चले जा, थाना नाका आएगा, वहां से फिर तो साइड में थोड़ा सा पेडिस्ट्रियन पकड़ के सीधा निकल जा तो स्टैंड पहुंच जाएगा। या फिर उसको बोलूंगा यहाँ से जो रिक्शा जाता है तो रिक्शा वाले को पकड़, वो तुझे स्टैंड छोड़ देगा, हो गया दूसरा रूट। या तीसरा बोलूंगा कि भाई तो एक काम कर, यहाँ से अंदर चले जा गाँव में, वहां से एक समोसा खा ले, वहां से अंदर से होते हुए भी तू जा सकता है। सो दिस इज थर्ड रूट, ओके। सो वी कैन हैव मल्टीपल रूट, ओके। तो किसी पैकेट को सही रूट बताना, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ये तीन पैरामीटर्स के, तो ये तीनों के हिसाब से हमको उसको रूट बताना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूटिंग और या फिर राउटिंग, ओके। फर्स्ट वन वाला है हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग। व्हाट इज लॉजिकल एड्रेसिंग? So basically we have one more address apart from the network, sorry, apart from the MAC address, or we can say hardware address जो हम लोग ने देखा, which is of 48 bits, ठीक है, जो कि 48 bits का होता है, and that particular address is represented in the form of hexadecimal numbers, okay। तो वो हमारा MAC एड्रेस है, ठीक है, जो हमारे डेटा लिंक लेयर पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, एक्शन में आ चुका है। नाउ वी हैव एट द नेटवर्क लेयर वी हैव वन मोर एड्रेसिंग विच इज कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेसिंग। हमारे आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, आईपी एड्रेस भी बोलते हैं, और उसको हम लोग नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं। तो दो तीन नाम इसके भी हैं, नामकरण इनके बहुत बार हुए हैं। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आपका मैक एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस, तो मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, और होता है आपके, आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, इवन आपके मोबाइल में भी आपको मिलेगा, बिकॉज इन योर मोबाइल यू हैव अ नेटवर्क कार्ड, ठीक है। जहां पर भी नेटवर्क कार्ड है तो नेटवर्क कार्ड पर ये जरूर आपका मैक एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मशीन एड्रेस भी बोलते हैं। और एक है हमारा आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हमारा आपको नहीं दिखेगा अगर आप किसी नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट होंगे, when you will be connected to any of the network device, then only it will show the IP address, okay। So you will be connected to any Wi-Fi router, then that Wi-Fi router will manage all the IP addresses, okay, and it will assign one IP address to your mobile because you are now connected। So आपको एक एड्रेस देगा, चल भाई तो यूज कर।
फिर आप जब वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो वो आईपी एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कैन बी सॉरी आईपी एड्रेस कैन नॉट बी अ यूनिक वन, ठीक है। यहाँ से मैं घर पे गया तो भी सेम वो मतलब हो सकता है कि अगर कभी यहाँ पे भी पब्लिक एड्रेसेस यूज कर रहे हो 192.168.0.0 वो सीरीज के अगर यूज कर रहे हो, और घर पे भी हमारे वाईफाई राउटर के अंदर यही सीरीज यूज होती है जो कि एकदम पब्लिक सीरीज है, तो उसको हम लोग यूज हो सकता है कि वो भी यहाँ पर भी वहां पर भी सेम है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड, तो उसके हिसाब से हमको आईपी एड्रेस असाइन होते रहते हैं, ओके। सो बेसिकली जो टू मेजर फंक्शंस है हमारे नेटवर्क लेयर के, दैट इज नथिंग बट द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग, ओके, और राउटिंग, ओके। So logical address, network layer provide IP address. Okay, now this is presenting the IP address to travel the packet in the network, and the address is responsible to reach the packet or data at the destination. तो भाई आपके पास में लिफाफा है, आपके पास में पोस्ट कार्ड है, आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। तो एड्रेस क्यों लिखेंगे हम लोग, एड्रेस हम लोग इसके लिए लिखेंगे ताकि हम लोग प्रॉपर एड्रेस से पहुंच, हमारा जो लिफाफा है, हमारा जो पोस्ट कार्ड है, हमारा जो लेटर है, दैट मस्ट रीच एट द डेस्टिनेशन प्रॉपरली विदाउट एनी हर्डल, ओके। सो वैसे ही हमारा यहाँ आईपी एड्रेस का भी कुछ काम होता है। तो आईपी एड्रेस हमारा इसके लिए देते हैं ताकि यहाँ से वहाँ, फिर वहां से वहां, वहां से यहाँ जा सके, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर दो चीज आप लोग को ध्यान रखने वाली है कि देखो आईपी एड्रेस हर जगह चेंज होता रहेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस हर जगह चेंज होता रहेगा, बट आपका जो मतलब जो आपका मैक एड्रेस होता है कि वो कभी चेंज नहीं होता है। तो दो दो चीज आपको याद में रखनी है। तो लॉजिकल एड्रेस में अंदर वी हैव वन मोर एड्रेस व्हिच इज द आईपी एड्रेस, एंड दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस विल हेल्प आवर पैकेट टू ट्रैवल इन द नेटवर्क, ठीक है। तो कोई भी मतलब ये बेसिकली हमारे पैकेट का एड्रेस है, कहाँ जाना है भाई, तो उसके लिए हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे कहाँ पर गया है भाई, हाँ, जैसे हमारा फोन नंबर होता है थिंक, ठीक है, 022 255, ये खबरदार ये मेरा नंबर नहीं है, 255 04354, ये मेरे नंबर था पहले लेकिन अब नहीं है, फर्स्ट मोबाइल नाउ। सो अब आप ये मोबाइल के अंदर देख के बताओगे कि ये आपका जो है ना एसटीडी कोड है, ठीक है, ये आपका एसटीडी कोड हो गया। A2 आप कंपलसरी हर एक के साथ में लगाते हो। उसके बाद में क्या होता है, आपका फोन नंबर होता है ना 55043544। इवन मैं मोबाइल मैं आपके मुंबई की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, ये मुंबई के अंदर हमारा नंबर था। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है, तो इसके अंदर जो आपके 3 डिजिट होते हैं या 4 डिजिट कुछ होते हैं, जिसमें बेसिकली 3 डिजिट जो होते हैं वो होते हैं एरिया कोड। क्या होते हैं, एरिया कोड। मतलब एरिया को डिफाइन करने के लिए ये वाला कोड रखा गया है। मतलब 550 जो ये है, ये आपको एरिया कोड डिफाइन करता है। और ये जो नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड द सब्सक्राइबर नंबर। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर नंबर, ओके। तो मतलब अगर किसी को नया फोन असाइन करना है, ठीक है, यहाँ तक नंबरिंग हो चुकी है, तो नंबर कैसे साइन होगा उसको, 5504। अच्छा, वही लोकेशन का अगर है, सेम लोकेशन का मेरे घर के बाजू में था, उसने भी अगर कनेक्शन लिया, व्हाट विल हैपन, 55043555, उसका नंबर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एरिया कोड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से एक बंदा कॉल कर रहा है, ठीक है, आपको ये बंदा नजर आ गया हूँ आई थिंक सो, नीचे मैंने ग्रीन में बताया हूँ। सो ये बंदा आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब ये बंदा जब कॉल कर रहा है, तो ये बहुत सारे एरिया है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, तो ये 550 वाला एरिया है, 550 वाला। उसके बाद में जो एरिया है वो 551 वाला एरिया है। उसके बाद में जो एरिया है वो है 552 वाला एरिया है, ठीक है। अब ये बंदे ने कॉल किया मुझे 55043544, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा कनेक्शन निकला, ठीक है, निकल के मेरे PSTN, दैट इज पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, बिकॉज जो लैंडलाइन का जो बादशाह है, जो लैंडलाइन को सारों को मैनेज करता है, वो है आपका PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। तो अब ये उसको बताएगा कि तुझे कौन से एरिया में जाना है, बिकॉज जब एरिया चेक किया, अच्छा 550 में है, वो यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अच्छा 550 में पहुंच के वहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर है, ठीक है, ये एक सब्सक्राइबर, ये एक सब्सक्राइबर, ये एक सब्सक्राइबर, सो बहुत सारे सब्सक्राइबर यहाँ पर है हमारे पास, उनके पास भी है। सोचो ना, 4354, 4340, 4354 पीपल्स आर देयर हु आर यूजिंग द लैंडलाइन फोन, ठीक है। उनमें से हमारा नंबर कौन सा है, 54 वाला है, 4354। तो हमारा कनेक्शन प्रॉपरली हम तक पहुंचेगा, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इज दैट
how your call is getting established, how your call is getting connected to the proper subscriber only. Okay, because it has the proper address. Okay, so in the same way in our networking also, in the same way we have इन द सेम वे वी हैव आईपी एड्रेस. ओके, सो आईपी एड्रेस के अंदर भी जिसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, उसके अंदर जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं. एक होता है होस्ट पार्ट और एक होता है नेटवर्क पार्ट. तो मतलब उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1. इसके अंदर से इसके इसमें क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एड्रेसेस. वन इज द नेटवर्क एड्रेस एंड सेकंड इज द होस्ट एड्रेस. ओके, तो होस्ट बिट और नेटवर्क बिट, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा. आप ये सब ये जो 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 नेटवर्क एड्रेस है, तो दैट नेटवर्क एड्रेस विल रीच यू एट द नेटवर्क ओनली. आपको नेटवर्क तक ले जाके छोड़ देगा. जैसे उसने आपको एरिया तक ले जाके छोड़ दिया, वैसे आपको ये नेटवर्क तक लेके जाके छोड़ेगा. उसके बाद में होस्ट एरिया मतलब होस्ट बिट, तो ये आपको होस्ट बिट क्या बताएंगे, होस्ट बिट आपको होस्ट तक ले जाके छोड़ेंगे, यानी कि जिसका आईपी एड्रेस है वहां तक ले जाके छोड़ेंगे. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और भी करेंगे बात, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से डेविएट कर रहे हैं, अपने टॉपिक से डेविएट कर रहे हैं. सो ये हमारा आईपी एड्रेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए. ओके, सो कमिंग टू दी राउटिंग, as I told you that routing it is the responsibility of this layer to transfer the data from one network to another network if required. Okay, so IP address is used in this particular layer so that के आपका प्रॉपर रास्ता देखते देखते आपका जो पैकेट है वो पहुंचे. ठीक है, ये आपका नेटवर्क है. ठीक है, ये आपके और भी नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क, 5 नेटवर्क. ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका एक यूजर था, इसने क्या भेजा, यहाँ वाले को कुछ मैसेज भेजा. कहाँ वाले को, यहाँ वाले को. ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. बीच में राउटर 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 कनेक्टेड है. अब जब आपका पैकेट यहाँ से निकलेगा तो आपका राउटर ये बताएगा कि चलो सीधा चले जाओ. ये क्या हो रही है, राउटिंग हो रही है बेसिकली. ठीक है, so this router is sending the signal or the packet towards the correct destination. ठीक है, तो ये आपका जो राउटर है वो यही काम कर रहा है, राउटिंग का काम कर रहा है. so basically routing works at the network layer. तो आपका ये सीधा आगे जाएगा, ये बोलेगा कि ठीक है सीधा आगे जाओ, ये बोलेगा सीधा आगे जाओ, फिर आगे जाते 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 आपका डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा. इवन यहाँ से ब्रांचेस है, यहाँ से ब्रांचेस है, यहाँ से, so many branches are there, but it is not deviating from its original path. Okay, it is going towards the destination only, because these are the routers only who are routing or who are showing the correct path to the packet. Okay, or signal. तो बेसिकली दो काम हमारे बहुत मेजर फंक्शन है नेटवर्क लेयर के अंदर. वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग एंड सेकंड इज राउटिंग. ठीक है, the network layer is responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम लोग डेटा लिंक लेयर में इन दो चीजों की बात कर रहे थे. द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स वाई मैंने देखो जो टैग लाइन रखा हूँ तो मैं नीचे ग्रीन स्ट्रिप में रखा हूँ. इफ यू रिमेम्बर, the data link layer is responsible for moving frames from one hop to the next hop. Okay, from one to the next hop, then from that hop to the next hop, then from that hop to the next hop, and so on. Data link layer. इन जब बात करेंगे हम लोग आपके नेटवर्क लेयर की, so the network layer is responsible for the delivery of packet from the source host to the destination host. कैसे, आइए देखते हैं. अगेन सेम डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन किया गया है. यहाँ पर मैं आप चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करें. ओके, सो दिस इज योर सिस्टम ए. ओके, एंड यू वांट टू सेंड सम डेटा टू सिस्टम एफ. ओके, व्हिच इज द एंड सिस्टम. ओके, सो बोथ आर एंड सिस्टम ओनली. so this you can see this hope to hope delivery is provided by data link layer. okay, यहाँ से यहाँ तक जैसे फ्रॉग होता है ना, यहाँ से जंप वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, तो लाइक दैट. So it will jump from A to B, from B to E, then from E to F. So that will be done by the data link layer. But अच्छा ये इसकी responsibility है. Okay, but your network layer is responsible for the delivery of individual packet from your source to the destination. F आपका destination है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी responsibility आपका network layer रहता है. ठीक है,
देखो अब आप देखते जाओ कि आपका डेटा लिंक लेयर पे आपके पास में खाली मैक एड्रेस था। कौन सा एड्रेस था? मैक एड्रेस था। तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से यहाँ। अच्छा, क्या होता है, थोड़ा सा मैं इन डेप्थ और घुस के आपको बताता हूँ। ए से निकला अभी, ठीक है। तो ए अपना जो पैकेट रेडी करेगा ए, तो उसके अंदर क्या रहेगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। तो सोर्स मैक मतलब ए, ठीक है, तो सोर्स मैक मतलब ए, और डेस्टिनेशन कहाँ पे, तो वो बोलेगा भाई मुझे बी पे जाना है, कि नेक्स्ट बी पे, क्योंकि आगे का जो रास्ता वो बी तक उसको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ए से बी तक पहुंच गया। बी पहुंचने के बाद में पैकेट वापस से रिडिफाइंड होगा आपका, ठीक है। एट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो वापस से सोर्स क्या है, सॉरी सोर्स तो आपका ए है। आप सॉरी सॉरी सोर्स आपका क्या बन जाएगा अभी, सोर्स आपका बन जाएगा बी, ओके। तो सोर्स बन गया हमारा बी। और नेक्स्ट होप कौन सा है, ई है। तो हमारा जो डेस्टिनेशन होप है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, okay, I'm talking about the MAC addresses, okay. So my source is b, my source is b now and the destination is e, okay. यहाँ पर आने के बाद में वापस आपका पैकेट रीडिफाइंड हुआ, और पैकेट यहाँ से फिर आपका निकला, ये सोर्स बन जाएगा आपका e, और डेस्टिनेशन बन जाएगा आपका f। f पहुंचने के बाद में देखेंगे कि अरे ये तो f तो हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो ये चल के आपको फिर आगे चल के आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो ये हमारा डेटा लिंक लेयर के ऊपर सारे काम हो रहे थे, ठीक है। अभी अगर नेटवर्क लेयर की बात करेंगे तो वी हैव वन मोर एड्रेसिंग दैट वी कॉल इट एज अ लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसकी हमने अभी जस्ट बात की है। और उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस भी, ठीक है। सो दिस इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला जो एड्रेस है आपका, आईपी एड्रेस जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम योर सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पर अब जब पैकेट होगा, ये अलग अलग नहीं होता है, साथ में होता है, लेकिन दिस इज जस्ट all these things are segregated in order to show, in order to demonstrate, in order to understand you people that के ऐसा काम होता है अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे आपको खाली बताने के लिए। कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ। तो इसमें सोर्स आपका सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फिर सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। अब इसके थ्रू, ये चारों एड्रेस के थ्रू आप निकल चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे, चले 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 बी के पास पहुंचे। बी ने बोला भाई थोड़ा और आगे जाओ, तो ये चले 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 एफ के पास में पहुंचे। एफ ने बोला भाई थोड़ा और आगे जाओ, चले 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 आपके एफ के पास पहुंच गए, ई से एफ के पास पहुंच गए। सो दैट बिकम्स आपका जो डिलीवरी होगी वो इस तरीके से होगी at a network layer, okay. I hope this is clear and you people are understanding how the things are working in the network layer. Please let me know whether you people are understanding or not. Yes, sir. Okay. है ना अभी हमारे पास में, देखो हम लोग अभी सिर्फ एक लेयर कर पाए, ये बहुत टाइम ले लेता है एक्चुअली ये टॉपिक। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग बात किए। यू कैन जस्ट हैव अ सेपरेट डायग्राम फॉर दी कहाँ था हमारा नेटवर्क लेयर ना, तो नेटवर्क लेयर में मैंने, हाँ बराबर सही। सो यू कैन ड्रॉ द सेपरेट डायग्राम फॉर योर नेटवर्क लेयर that you are getting the data, that you are getting the data from the transport layer. You can just follow my cursor. I will not mark it from the red ink, तो मैं ड्रॉ उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। सो इट विल बी रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, दैट इज फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन इट विल बी गिविंग द डेटा टू द डेटा लिंक लेयर, ओके। अब यहाँ पर आपका जो नेटवर्क लेयर है वो काम क्या कर रहा है, उसने अपना हेडर तो लगाया है, साथ साथ में इट इज एडिंग the addresses also, ठीक है। कौन सा एड्रेस, that is the logical address, because you know the logical address has been introduced by your network layer only, okay। तो यहाँ पर आपका जो IP addresses है वो आपके IP addresses will be added at this particular section, और फिर आगे डेटा लिंक लेयर को पास करेंगे, ठीक है। उसके पहले उसके अच्छा उसके बाद में when this particular packet will reach at the destination, then this packet will be sent by data link layer to the network layer, then network layer will send this data to the transport layer, okay, by removing this particular header. So each and every layer just add some headers to the existing packet, and that particular packet will be that particular header will be removed by the will be removed at the receiver side, okay. Those are added at the center side and those are removed at the receiver side. And I said you, okay, what are those terminologies, adding मैं तो बोल दिया, adding headers to the existing data packet,
okay, at the center side it is called as encapsulation, and removing those headers from the data packets, okay, at the receiver side is called decapsulation. So encapsulate कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर headers, and यहाँ पर हम लोग decapsulate कर रहे हैं. So these things are done at the network layer, and you can just simply you can see ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग अगर कभी हम लोग एग्जामिनेशन में इसका आंसर लिख रहे हैं तो, ठीक है. सो पहले जब फिजिकल क्लासेस चलती थी तो वी यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट दैट यू जस्ट ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम सो दैट यू विल आल्सो गेट एन आइडिया. एक बार कम से कम वो ड्रॉ कर लेता था तो उसको थोड़ा बहुत याद रह जाता था. अब तो ऑनलाइन के अंदर वो उतना भी प्रोविजन नहीं, पूरा ड्राइंग और नॉट कहाँ कहाँ किसका चेक करेंगे, ऐसा हो गया. Coming to the next layer, that is fourth layer, transport layer. Again, important layer of the OSI reference model. Okay, so this is the fourth layer which is responsible for the reliable data transport. Okay, reliable data transport from your reliable data transport, आपके डेटा, आपका जो डेटा है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक रिलायबली ट्रांसपोर्ट हो, कोई एरर ना है, कोई प्रॉब्लम ना है, इतना मेक श्योर करना है. Transport also data must be in sequence and error free. You know, two more responsibilities are there for the transport layer is that your data, whatever data you have, you are not going to send that data in once only. Okay, ऐसा है कि आपका जो वीडियो फाइल है 700 MB की आपकी वीडियो फाइल है, यू आर सेंडिंग इट वंस ओनली और एक झटके में चलेगी, ऐसा कुछ है? नो, योर डेटा इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द फ्रेम्स. ओके, डेटा को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड करने के लिए उसके फ्रेम्स बनते हैं, फ्रेमिंग होती है, ऑल दैट आप आगे चल के बहुत सारी चीज उसमें सीखोगे. तो द मेन क्रक्स इज दैट योर डेटा इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट. ओके, और वो उसको हम लोग को सीक्वेंस में रखना पड़ता है. सीक्वेंस में रखने के लिए आप कैसे आगे पीछे हो गए तो फिर क्या करेंगे? So we have to provide the numbering, and that numbering is called as sequence numbering. Okay, so that sequence number is to be provided to all the part. Okay, and at the receiver side we have to assemble those part in sequence. Okay, so your transport layer is responsible to make all those part in sequence, and each and every part must be error free. अगर किसी एक में भी error आया तो that error will be propagated into the data. Okay, and that always this is the बहुत अच्छी कहावत है जिसको हम लोग बोलते हैं bugs follow bugs. Okay, so एक error आया, so that errors will generate another error, and that two errors will generate multiple errors, and so on. Okay, so we have to make sure that that particular part whatever we are dividing, so that we are assembling, so each and every part at the receiver side I'm talking about, so whatever part we are receiving that must be error free. Okay, and that must be in a sequence so that we can assemble the data properly. Okay, अगर उसमें से किसी एक का भी डेटा, मतलब चलो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आपका डेटा था डिवाइड किए 4 पार्ट में, नंबर 1 2 3 4. ठीक है, आपने सीक्वेंस नंबरिंग में दी थी 1 2 3 4. ये आपका सोर्स पहुंचा डेस्टिनेशन पे. ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में आपका पहले पैकेट पहुंचा, पैकेट नंबर 2 पहुंचा, उसमें यहाँ पे रखा, फिर पहुंचा 3 यहाँ पे रखा, नंबर पहुंचा नंबर 4. ओके, जब चेक किया तो पता चला कि पैकेट नंबर 1 है ही नहीं, पार्ट नंबर 1 है नहीं. तो how we will come to know that case the particular part is not present by use of sequencing. ठीक है, जिसको हम लोग this process is called as sequencing, from which we give the numbers to all the part. Okay, तो ये नंबरिंग नहीं थी, तो फिर क्या करेंगे? डेस्टिनेशन विल आस्क द सेंडर टू रीसेंड इफ मे बी कहीं एक्सीडेंट हो गया उसका, कहीं पे ड्रॉप हो गया, कहीं पे लॉस हो गया, सो दिस मे बी द पॉसिबिलिटी. So what we will ask to the sender that please send the packet number 1 because we have not received the packet number 1. So sender will resend the packet number 1, and we can assemble the data into one packet. Okay, so this is the why this is particular transport layer is responsible for the sequencing and error free. अच्छा, हर एक का क्या होगा? एरर चेक होगा. ठीक है, we have so many error correcting, we have so many error checking, we can say error detection and error correction mechanism. Error detection and error correction mechanism. ठीक है, so these two mechanisms we have from which we can easily come to know that this particular part is error free or not. Okay, so हर एक का error detection होगा, हर एक का error detection. So this particular error detection must be done by the transport layer only. ठीक है, so you can just find out so many tasks, so many functions are there in the transport layer. Okay, मैं इसके अंदर ऐसा है ना, मुझे बोलना ही है, मैं कहीं रुक के आप लोग से इंटरेक्ट थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए
इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट, इन बिटवीन इफ यू हैव एनी इशू, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज आपको बताना है, ठीक है। एंड आई होप दैट के यू पीपल्स आर नोटिंग द थिंग्स आल्सो, ठीक है। तो नोट डाउन भी करते रहो तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे सिंपल ये है कि whenever you are sitting for the lecture, so always keep a book, notebook with you, and date के साथ में whatever you are learning, so just make a note, okay, or just keep noting down the important things, okay, जो important चीज आ रही है उसको note down करते रहा, so that आपके लिए भी फायदेमंद है, बाद में जब आप लोग रेफर करेंगे तो वो आप लोग को काफी आपको हेल्प होगी उससे। Okay, transport layer communicate in two ways. That is in the connection oriented. As I told you in the first lecture only that हमारे first section में था connection oriented service and connection less service. And the connection oriented service is being provided by the one protocol जिसका नाम है TCP. मैंने बोला था आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं जो कि बहुत जैसे ना दो ट्रक है, एक का नाम है टीसीपी, दूसरे का नाम है यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड फॉर user datagram protocol. Okay, so we have these two services which is being provided by the transport layer. One is connection oriented service which provide the acknowledgement for each and every packet, which is quite slow, okay, or which is reliable, okay, and error free, okay, and also resend the packet, okay. If there is any packet loss, then it will resend the packet, okay. But in the same way we have a connection less service in which it does not provide acknowledgement, which is fast because it is not waiting for the acknowledgement, it is sending one packet after another packet, okay. So it is not reliable because it is not resending the packet, and it may contain error. So you will find a lot of problems in the connection less service which is being provided by the UDP, that is user datagram protocol, okay. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा उसको स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। For the first one, that is TCP अच्छा कुछ पूछना भी है तो अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा because I am on this particular page, so I will not come to know कि वहाँ पर क्या मैसेजेस आप लोग सेंड कर रहे हैं। So TCP transmission control protocol, very reliable protocol. It provides, so for example पैकेट नंबर 1 सेंड की, पैकेट नंबर 1 इसने रिसीव किया, तो ये क्या करेगा आपका डेस्टिनेशन, इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट में सामने वाले को एक्नॉलेज करना होता है कि भाई I have received packet number 1, okay, and you can send the next packet, okay, so you can send the next packet, okay। तो ये जब जैसी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर को पहुंचेगा तो रिसीवर सेकंड पैकेट सेंड करेगा, सेकंड पैकेट यहाँ पर आ गया, उसके बाद में इट विल सेंड द सेकंड एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट इसको मिलेगा, जैसी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा फॉर द सेकंड पैकेट इट विल सेंड द थर्ड पैकेट and so on. So this is called the acknowledgement policy, which is very good policy, and it is applicable and it is implemented in almost all the places, ठीक है। काफी सारे algorithm इसको हम लोग यूज करते ही हैं because acknowledgement जब तक नहीं मिले तब तक के नेक्स्ट क्या भेजना, ठीक है। हो सकता है कि आपका पैकेट फॉर एग्जांपल आप पैकेट नंबर 3 यहाँ से सेंड कर रहे हो, पैकेट नंबर 3 बीच में कहीं लॉस हो गया, ठीक है, डेस्टिनेशन को मिला ही नहीं, डेस्टिनेशन कंप्यूटर को मिला ही नहीं, देन व्हाट अच्छा उसका फिर क्या है, एक टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सेंडर आपके पैकेट कोई भी पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए और रिसीवर से उसका एक्नॉलेजमेंट आने के लिए फॉर एग्जांपल 2 मिनट लगते हो, 1 मिनट जाने के लिए और 1 मिनट एक्नॉलेजमेंट आने के लिए, ठीक है, तो टोटल इसको 2 मिनट लगते हो। So what sender will do, this is again one more policy that sender will send the packet and wait for 2 minutes, okay. Why it is waiting for 2 minutes? Because it knows that for reaching at the receiver side your packet takes 1 minute and acknowledgement को आने के लिए 1 minute, चलो 2 मिनट के आगे 5 सेकंड और भी पकड़ ली, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो 2 मिनट 5 सेकंड हो गए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो व्हाट सेंडर विल थिंक, your sender will think that कि मेरा पैकेट कहीं ना कहीं लॉस हो गया, ठीक है, और पैकेट लॉस हो गया और तो क्या करेगा फिर वापस से उस पैकेट को रीसेंड कर देगा, मतलब उसके बोले बगैर ही रीसेंड कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉलिसी, मैं आपको आगे चल के आती रहेंगी पॉलिसी तो आपको मैं बताऊंगा, मैं पॉइंट से हट जाता हूँ, डेविएट हो जाता हूँ, प्रॉब्लम ये बहुत है, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट लेयर, these are the services provided by the transport layer. One is the segmentation, sequencing, connection establishment, acknowledgement, flow control. These all are the services which is being provided by the
ट्रांसपोर्ट लेयर। सेगमेंटेशन क्या है? डेटा इज कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट बिफोर सेंडिंग, ठीक है। अब आप अक्खा डेटा तो भेजने तो वाले नहीं है, ठीक, क्या होने वाला है? तो डेटा इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। So segmentation is nothing but conversion of data into segments, okay, before sending. Sequencing, हर सेगमेंट को क्या करना है आपको? सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग। दैट्स डन। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, before sending connection is to be established. If the connection is not established, then how you're going to start the communication, okay? We're not going to send the data from that particular link, because if you're not connected, if you're not established the connection, if you are not established the link, then how you will send the remaining data, okay? So this is the responsibility over here. Acknowledgement for each and every packet, the acknowledgement is given by the receiver to the sender, otherwise it will not send the packet, okay? Okay, then the last one is the flow control. It confirms the transfer rate of the data. Okay, that one we have seen in the physical layer also. It defines the data rate. If you remember, it defines the data rate, that how much bits, how many bits, okay, per second, per minute, कितने जाना चाहिए, that is the data rate. Okay, data rate की जो speed, मतलब जो rate है, जो transfer rate है, data का जो transfer rate है, that is to be confirmed in the flow control. Okay. तो फ्लो कंट्रोल के रिगार्डिंग भी हमारे पास बहुत कुछ है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके चीजें आएंगी। नो, दिस इज डन। वेयर द थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम द अपर लेयर, यू कैन सी, यहाँ से हमको मिल रहा है, सेशन लेयर से मिल रहा है, these segments we are getting, okay, this is segment number 1, segment number 2, and this is segment number 3, and each and every segment is nothing but the data, each and every segment is nothing but the data, and we are adding the header to each and every data, okay, you can see we are adding the headers to each and every data, and these segments are then forwarded to the network layer. Okay, so your transport layer is responsible for the delivery of message from one process to another process. Okay, ये अब जो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है मैं आपको आगे बताऊंगा, बिकॉज एट ट्रांसपोर्ट लेयर एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट एड्रेस। क्या है? सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। IP address plus port number becomes the socket address. So this particular address is introduced in this this socket address is introduced at this particular transport layer. Okay, so मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. But the thing is that the main function is that it divides the data into number of packets and into number of segment, and those segments are, you know, with those segment the header has been added at this particular layer, and those headers are removed at the receiver side. Okay, so it is the responsibility of the transport layer to delivery of packet or delivery of message, I will say complete message from one process to another process. Okay, जिस बंदे ने बोला है, जिस बंदे ने ये ऑर्डर किया है, उसी को ले जाके देना, बिकॉज यू नो हमारे जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. इफ you remember, then we have multiple ports, like we have for email communication we have a port, for file transfer we have a port, that is port number 21, for web surfing we have port number 80, that is HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, फाइल ट्रांसफर का पोर्ट नंबर 20 या 21 है, और ईमेल का कुछ अलग है. सो ये अलग अलग पोर्ट है, अलग अलग सर्विसेज है. ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली. तो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ मेल भेजा है सामने वाले को, तो वो मेल जो है ना आपके पोर्ट नंबर 20 से निकला है आपके सिस्टम से. ओके, तो आपके प्रोसेस से निकला है, और सामने वाले के मतलब रिसीवर के पास जाने के बाद में वो ईमेल के पोर्ट पर ही जाएगा, ना कि फाइल ट्रांसफर के और वेब एक्सेस के किसी और पोर्ट पे नहीं जाएगा, बल्कि उसी पोर्ट पे जाएगा, मतलब उसी प्रोसेस के पास में जाएगा. सो दैट ये आपको बताना चाह रहा है. मैं आपको उसके बारे में डिटेल में और भी बताऊंगा, जब वो आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे. और अभी के लिए शॉर्ट में एस्टैब्लिश द सेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. अच्छा, हम लोग सेशन में आ गए क्या? हाँ, यहाँ तक था आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में. दो और लेयर हम लोगों ने पढ़ी आज. ठीक है, नो डाउट वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग ऑल्सो. सॉरी, 10:45 हो गए. देखते हैं इसको 5 मिनट में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. आपका मतलब कवर हो जाएगा फटाफट. The fifth layer is the session layer, session presentation and application. Okay, so in the session layer, it is responsible for maintaining the session link. Okay, पहले तो establish करना वो लिंक को सेंडर और रिसीवर के बीच में. देखो 3 चीजें होती है, I will let you know.
सबसे पहले तो कि लिंक इस्टेब्लिश करना, उसके बाद में लिंक को मेंटेन करना, उसके बाद में लिंक को टर्मिनेट करना, ठीक है। तो इस्टेब्लिशिंग, देन मेंटेनिंग, देन टर्मिनेटिंग, ये तीनों काम आपको करना पड़ता है कि लिंक के लिए। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इस लिंक को एस्टैब्लिश करना पड़ता है पहले, फिर मेंटेन करना पड़ता है और फिर टर्मिनेट करना पड़ता है। ये तीनों काम करना पड़ता है जो कि हमारा सेशन लेयर करता है। कौन करता है? सेशन लेयर करता है। आफ्टर इफ सेशन ब्रेक्स इन बिटवीन देन रिकवरी इज आल्सो डन। तो मैं एक चीज भूल गया था यहाँ पर, रिकवरी, अगर बीच में कहीं सेशन ब्रेक होता है सो उसकी रिकवरी करना भी आपके सेशन लेयर का काम है। ओके, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा सिंक्रोनाइजेशन। वी हैव सीन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज डन बाय द फिजिकल लेयर, बट यहाँ पर डेटा का सिंक्रोनाइजेशन करना सेशन लेयर का काम है, ठीक है। तो फंक्शन कौन कौन से आते हैं इसके? इस्टेब्लिशिंग द लिंक, मेंटेनिंग द लिंक, टर्मिनेटिंग द लिंक, रिकवरी ऑफ द लिंक, ओके। उसके बाद में फिर सिंक्रोनाइजेशन भी आता है, ठीक है। सो ये सारे उसके फंक्शंस हैं, 1 2 3 4 5। सो दीज आर द 5 फंक्शन which are standard, which are static function, okay. It has to perform with all the data, whatever data is coming through that particular session layer, so उसको सबके साथ में करना ही है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। You can see this one, this synchronization is being done for all the data, okay, whatever the data is coming from the presentation layer. The session layer is responsible for the dialogue control and synchronization, so all that. Sixth layer is the presentation layer, okay. तो प्रेजेंटेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली डेटा को प्रेजेंट करने का काम है, ठीक है। द मेन थिंग, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इज डन एट द मेनली जो होता है वो आपका रिसीवर साइड होता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करना होता है, और यहाँ पर भी एट द सेंडर साइड भी डेटा को प्रेजेंट करके भेजना होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि you have sent the data or you have sent the images which cannot be easily understood by that particular computer। तो ठीक है, अगर आपने भेज भी दिया तो आपके प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करने का, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेन फंक्शन तो आपका यही पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद में इट ऑल्सो डिलीवर्स द डेटा फॉरवर्डेड बाय द सेंडर मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, ओके। it has to verify that whatever data which is coming from the upper layer, which is coming from the upper layer to the presentation layer, ओके। तो ये डेटा हमारे सामने वाले रिसीवर भाई साहब को, जो रिसीवर भाई साहब इधर बैठे हैं, उनको समझ में आना चाहिए। तो क्या करना, फॉर एग्जांपल ये दीज आर सम स्टैंडर्ड वन जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, पहले फॉलो करते थे, इसमें सम मोर हैज बीन एडेड। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है तो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, ASCII फॉर्मेट में होना चाहिए। इमेजेस अगर है तो JPG और GIF में होना चाहिए। ऑडियो है तो MP3 वेव में होना चाहिए। वीडियो है तो AVI MPEG होना चाहिए। ये आपका बहुत पुराना स्टैंडर्ड है, ठीक है। कुछ नए स्टैंडर्ड भी अभी आया है मतलब कि न्यू फॉर्मेट इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर लेयर इज मोर concentrated and it has more concentration on the presentation part, okay. Whatever data you are sending, your data may be text, कहाँ चला गया, your data may be text, your data may be image, your data may be audio or your may be video, ठीक है। तो इतना सब आपका डेटा है, तो ये डेटा आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं है तो फिर उसको प्रॉपरली फॉर्मेट में आपका लेयर करके देता है, ठीक है। सो योर मेन टास्क ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लेयर इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ओनली, ओके। सो मेन काम इसका प्रेजेंटेशन वाला काम। And this layer also does some formatting in order to present to upper layer, okay. So it is up to the presentation layer how to present the data. For example, it is getting the data in the form of JPEG, for example दे रहा हूँ। तो इसको मेरा JPEG है मेरा डेटा, तो ये क्या करेगा भाई, JPEG तो फॉर्मेट हमारे पास में है नहीं as per now, ठीक है। तो JPEG है नहीं तो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लाइट विल कन्वर्ट द JPEG into JPG so that the data can be understood by the receiver. So that is the conversion of the data. तो फॉर्मेटिंग जहाँ जैसी रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग, इट विल डू द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग। दैट इज द सिक्स्थ लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। आई एम गोइंग टू फास्ट, नॉट मैं उतना फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, आई थिंक सो। इसमें वी हैव सम मोर फंक्शंस लाइक ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। सो these three more functions have been added over here. One is the data representation, second verification of data, I have not mentioned over here, but यहाँ पर data verification भी है जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया था। उसके बाद में आपका थर्ड आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, इट कन्वर्ट द डेटा इन द कंपैटिबल फॉर्मेट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको,
JPEG से आपने JPG में कन्वर्ट किया, so you have convert the data into the required or compatible format. So that is nothing but the translation. Coming to the fourth one, that is compression, reducing the number of bits requiring transmission, which improves the data throughput. Throughput क्या होता है basically, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. It is the measure of how many units of information a system can process in a given amount of time. For example, आपका transmission media ये एक point है, यहाँ से एक सेकंड में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो एक सेकंड में कितने पैकेट यहाँ से पास हुए, तो एक पैकेट गया, 2 पैकेट गया, 3 पैकेट गया, 4 पैकेट, तो 4 पैकेट्स अगर गए हैं तो आई कैन से द थ्रूपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, throughput at this particular point is nothing but 4, that is 4 packet per second. Okay, so this is how many units of information has been passed from a given amount of time. एक सेकंड में कितने गए, इतने गए, तो so it becomes the throughput of that particular at that particular point. Okay, so compression में क्या होता है आपको भी मालूम है, compression 7-zip है, rar है. What you are going to do, you are going to reduce the number of bits requiring the transmission. तो आपका डेटा था 4 KB का, ठीक है, आपने कंप्रेस किया, बन गया 2 KB. ओके, so this is nothing but the compression, you all know that. Okay, so this is the one which has been provided by this particular layer. Okay, that is presentation layer. And the last one, encryption. You also know about the encryption. Encryption में क्या होता है, encryption is needed for the security purpose. The main task is the security purpose when sending data across the network. So there may be, there are a lot of people who will try to access your data, so for that purpose we need the encryption technique. Okay, so ये 3 functions है इसके जो हम लोग add कर सकते हैं. And apart from this we have last layer, that is application layer. And you will find a lot of a lot of protocols are there, like HTTP, POP3, FTP, SMTP. So these protocols are working on this particular one, and you will find yourself with some kind of browser, Gmail, Outlook. Okay, so these are the applications from which you can make use of the things. Okay, so last layer के बारे में we can have a discussion more in the next lecture. Okay, so till then we'll stop over here. Okay, please let me share this. Let me stop the recording first, and then I will share this.